Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am continuing your chapter 5 of geography. The name of the chapter is agriculture. In this chapter, today we will discuss the topic that is major crops. Mm, till In my previous videos, I explain you about the different type of agriculture. ओके जिसमें हमने कमर्शियल एंड सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के टाइप्स को स्टडी किया था. नाउ लेट अस रीड अबाउट द डिफरेंट और मेजर क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड. As I told you in my previous video that there is we are classified the whole word crops into three parts. One is cereals, then fiber crops, and then beverages. Okay. So, first of all, we will discuss in detail about the cereals. Cereals means anaj. It includes rice, wheat, maize, and millets. Now, what we have to be learn in this topic, students? In this topic, we have to be learn about the different crops, their geographical features, like in which type of soil is best for them, which type of climate is good for them, rainfall kitni required hai, areas in which these type of crops are grown at large scale. Okay, so let us start. The very first crop is rice. Rice is the very important crop, and in our country, in the southern part of the country, this is the staple crop. Okay, so let us read about rice. The soil type that is good for the rice cultivation is alluvial, loamy, and clay soil. That is ideal for rice cultivation. Next is temperature. 24 degrees Celsius or above with minor variations during sowing, growing and harvesting season. Temperature कौन सा best है? 24 degrees Celsius or above with little bit variations at the time of sowing, growing and harvesting. Okay. Next, rainfall. It required high rainfall areas. Exactly for the rice cultivation we required high amount of water. वाटर की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है इसमें. तो राइस फ्लोरिश वेल इन द एरियाज वेयर रेनफॉल इज अबव 100 सेंटीमीटर. ओके. द areas where this is that are ideal for the cropping of rice is deltas, river valleys, coastal plains and terrace fields in mountainous region are ideal for cultivation of rice. Now the producing areas in the world. China leads the production of rice, followed by India. It means China is at the first place. Then India, Indonesia, Bangladesh, Vietnam, Thailand, Myanmar and Japan. These are the major rice producing areas. Okay. Rice producing areas in India. India is the second largest producer of rice in the world after China. Rice is mainly cultivated in India in the states of West Bengal, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Telangana, Punjab, Odisha, Bihar, Chhattisgarh and Tamil Nadu. These are the major crops, these are the major areas, those are rice producing areas in our country. The main areas is West Bengal, UP, Andhra Pradesh, Telangana, Punjab, Odisha, Bihar. Okay. चलिए, now come on the next type of soil. The next crop is wheat. The soil type is loamy soil is required for this crop. Loamy soil is best for the cultivation of wheat crop. And temperature, while students, when you are learning for the temperature for the wheat cultivation, just keep in mind that there is two temperature conditions that required for the wheat cultivation. At the time of sowing there is the different time temperature, and at the time of harvesting we need different temperature. Okay. So the ideal temperature for wheat at the time of sowing is 10 to 15 degree Celsius. मीन्स जब सर्दी स्टार्ट हो जाती है तब हम वीट जो है वो कल्टीवेट करते हैं, सो करते हैं. एंड एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, कटिंग के टाइम पर टेम्परेचर जो है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, मार्च का मंथ, अप्रैल का मंथ, जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तब वीट को कल्टीवेट किया जाता है, सॉरी कट किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है. चिल्ड्रन कीप इन माइंड दैट
at the time of before harvesting, just before harvesting, it required full sunshine, पूरा ब्राइट सनशाइन चाहिए होता है वीट को टू बी राइपनिंग के लिए, ठीक है, पकने के लिए वीट को प्रॉपर सनशाइन की ज़रूरत होती है, और टेम्परेचर जो है उस समय 20 to 25 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड होता है, ठीक है. तो दिस इज़ योर वीट सॉइल टाइप एंड टेम्परेचर. नाउ कम ऑन रेनफॉल. इट ग्रोज वेल इन 75 to 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. हार्वेस्ट पीरियड शुड बी फ्रॉस्ट फ्री, और हार्वेस्ट पीरियड फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए. एरियाज मिड लैटिट्यूडनल एंड ड्राई सब ट्रॉपिकल रीजन्स आर आइडल फॉर इट्स कल्टिवेशन. इट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ टेम्परेट रीजन. ये टेम्परेट रीजन की मेन क्रॉप है. Wheat producing areas in the world: temperate grasslands of North America, South America, Central Eurasia, China, India, Russia, USA, France. All these are the wheat producing areas of this region. एरियाज़ ध्यान रखने हैं, ये मिड लैटिट्यूड्स एरियाज़ में होते हैं, जहाँ पर जैसे सब ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं और मेन टेम्परेट रीजन्स हैं, ठीक है. वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज कल्टिवेटेड इज़ मेनली कन्फर्न टू द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल रीजन ऑफ इंडिया. इंडिया के नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट्स में मेनली इसको कल्टिवेट किया जाता है. उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, गुजरात एंड महाराष्ट्र आर द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. ओके, तो ये हमारे मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं. नाउ कम ऑन सॉइल टाइप. Maize generally grows well in the areas of well-drained alluvial soil. Alluvial soil में ये ज़्यादा अच्छी ग्रो होती है. It grows well in 20 to 27 degree Celsius areas. Rainfall required is 50 to 100 centimeter. In areas of less rainfall, it is grows under irrigation. और less rainfall में ये irrigation के अंडर होती है. Means it require proper irrigation facilities. ठीक है, मैं दोबारा पढ़ रही हूँ. मेज़ मीन्स मक्का, ठीक है, और मेज़ जनरली ग्रोज कहाँ होती है? वेल ड्रेन्ड ऑलिवल सॉइल में, जो अच्छी तरह से ड्रेन्ड हो जाती है, ठीक है. टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज़ 21 to 27 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल रिक्वायरमेंट इज़ 50 to 100 सेंटीमीटर. एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट इज़ ग्रोज अंडर इरीगेशन. लेस रेनफॉल अगर में हम मेज़ को ग्रो करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें इरीगेशन फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है. मीन्स इफ़ वी आर ट्राई टू बी ग्रो दिस बिलो 50 डिग्री सेंटीमीटर रेनफॉल एरियाज. ओके, द बेस्ट एरियाज ऑफ दिस इज़ USA, चाइना, ब्राज़ील, इंडिया, अर्जेंटीना, यूक्रेन, मैक्सिको, इंडोनेशिया, फ्रांस एंड साउथ अफ्रीका. These are the major maize producing countries and it is known as corn in the USA. USA में ये corn के नाम से जानी जाती है. Areas in India maize is cultivated in मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान and उत्तर प्रदेश. It is known as मक्का in India. और इंडिया में हम इसको क्या कहते हैं? मक्का, मक्की के नाम से इसको हम मेनली जानते हैं. Now come on the millets. Millets are also very important crop and it's millets जो है ये हमारा अनाज ही है, ठीक है. सॉइल टाइप दे आर ग्रोन इन द सॉइल ऑफ पुअर क्वालिटी सॉइल में भी ये ग्रोन हो जाती है, ठीक है. दे ग्रोज वेल इन 18 to 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. 18 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ये ग्रोज होते हैं. रेनफॉल दैट रिक्वायर्ड हेयर इज़ 30 to 75 सेंटीमीटर. रेनफॉल मेनली जो यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है वो हमारी 18 to 32 डिग्री 30 to 75 सेंटीमीटर लेस रेनफॉल एरियाज़ में भी जो हमारे मिलेट्स है वो ग्रो हो जाते हैं, ठीक है. एरियाज़ इन द वर्ल्ड में इंडिया, नाइजीरिया, नाइजर, चाइना, माली, बुर्किना फासो, सूडान, इथोपिया आर द मेन कंट्रीज. ओके, तो ये हमारे मेन मिलेट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं. मिलेट्स इंक्लूड कोर्स ग्रेन इन ज्वार. नाउ इंडिया में जो हमारे मिलेट्स ग्रोइंग एरियाज़ हैं
एरियाज ज्वार, बाजरा, रागी, और ये ग्रेन जो है ये फोडर के रूप में भी यूज़ हो जाती है। मिलेट्स में जो हमारे मेनली ग्रेन कौन कौन से आते हैं, मिलेट इज़ नॉट अ सिंगल क्रॉप, एक सिंगल क्रॉप नहीं है, ठीक है। तो इसमें ज्वार, बाजरा और रागी ये तीन मेन जो हमारे कोर्स अनाज हैं, ग्रेन्स जो हैं वो इसमें ऐड होते हैं। एंड ज्वार जो है दैट इज़ मेनली कल्टिवेटेड इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। Bajra is grown in Maharashtra, Gujarat, UP, Rajasthan and Haryana. Ragi is mostly grown in Karnataka, Rajasthan, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Odisha, Uttarakhand, Gujarat and Goa. Okay, so these are the major growing areas of our country, millet growing areas of our country. Okay, now come on the fiber crops. Students, as I told you earlier that fiber crops are the crops that we are having, जिससे हम जैसे कुछ फाइबर्स निकलते हैं लाइक कॉटन, जूट, दीज आर फाइबर क्रॉप्स, ठीक है। ये हमारे फाइबर क्रॉप्स हैं, इनसे हम क्लॉथिंग भी करते हैं, ठीक है। तो लेट अस रीड अबाउट आर फाइबर क्रॉप्स। द फाइबर क्रॉप्स में हमारे पास वैसे तो देखिए यहाँ पर फाइबर क्रॉप्स डिवाइडेड इनटू टू इक्वल कैटेगरीज। फाइबर क्रॉप्स टू कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं, वन इज़ नेचुरल फाइबर एंड सेकंड इज़ आर्टिफिशियल फाइबर। नेचुरल फाइबर मीन्स जो बाय नेचर हमें मिल रहे हैं जैसे कॉटन एंड जूट, और आर्टिफिशियल फाइबर्स वो हैं जो हम खुद बना रहे हैं लाइक रेयॉन, नायलॉन, दीज आर आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स में हमारे एग्जांपल है कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल, ठीक है। कॉटन एंड जूट एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। सिल्क और वूल हम शिप्स से लेते हैं, सिल्क वॉर्म से ली जाती है, ठीक है। चलिए नाउ कम ऑन द कॉटन। द वेरी फर्स्ट फाइबर इज कॉटन एंड कॉटन इज हाँ जी, तो कॉटन, और कॉटन के लिए सॉयल टाइप जो रिक्वायर्ड है दैट इज़ ऑलिवल एंड ब्लैक सॉयल। टेम्परेचर इज़ 30 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड हेयर। रेनफॉल 60 to 100 सेंटीमीटर इज़ बेस्ट फॉर द कॉटन ग्रोइंग एरियाज एंड इस हार्वेस्टिंग पीरियड इज़ वेदर शुड बी ड्राई। हार्वेस्टिंग पीरियड में वेदर जो है वो ड्राई होना चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए और सनी होना चाहिए जब हम इसको कट करते हैं, किसको, कॉटन को, ठीक है। चाइना, इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान आर द मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज। इंडिया में गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आर द मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। cheap and efficient labor is required for plucking cotton ball. It is mainly depend on the irrigation also. बच्चे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉटन बॉल्स, देखो कॉटन का पौधा कुछ ऐसा होता है, इसके फ्लावर्स से कॉटन को प्लक करने के लिए जो है वो लार्ज स्केल लेबर रिक्वायर्ड होती है। तो ये एक लेबर जो ओरिजिनेटेड क्रॉप है जिसमें ज़्यादातर हमें लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। द नेक्स्ट इज जूट। जूट इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट फाइबर एंड the soil type that required for jute is alluvial. We can say that alluvial soil is best for the jute cultivation and it is mainly in the coastal areas of the country. अगर मैं जूट की बात करूं तो बच्चे जूट हमारे कंट्री में मेनली वेस्ट बंगाल में ग्रो होती है, ठीक है। तो डेल्टाइक सॉइल इज गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जूट। टेम्परेचर रिक्वायर्ड मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, annual rainfall more than 150 centimeter. Now areas in the world is India, Bangladesh, China, Ivory Coast, Thailand, Myanmar, Brazil and the main countries. ये मेन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर हमारे जूट कल्टिवेटिंग एरियाज़ के। इंडिया में मेनली गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, वेस्ट बंगाल, सम पार्ट ऑफ आसाम, बिहार, मेघालय, उड़ीसा आर द मेन जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज। ओके, सो दैट्स इट अबाउट योर फाइबर क्रॉप्स। हमारे पास फाइबर क्रॉप्स में मेनली एग्रीकल्चर में दो ही हैं, दैट इज़ कॉटन एंड जूट। ओके, नेक्स्ट इज आर बीवरेजेस क्रॉप, but today I am not discussing with you the beverages crop. We will discuss in the next video. For today you have to learn just only these crops,
that is wheat, rice, maize, millets, and the cotton and jute crops. Okay, that's it for today. Thank you.